السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں کہ ایک الو انسان کے بچے کی ماں کیسے بنی اور الو نے بچے کے ساتھ کیا کیا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ ایک گاؤں میں ایک ٹوکری والا رہتا تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پیسے، بنگلے اور گاڑیاں تھی، پر اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی بیوی بار بار بیٹی کو جنم دیتی تھی، جس سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس زمانے میں بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق کیا جاتا تھا اور بیٹوں کی اہمیت زیادہ مانی جاتی تھی۔ اس بار بھی ٹوکری والے کی بیوی ماں بننے والی تھی۔ بچے کے ولادت ہونے کا سمے قریب آنے پر جب وہ مائکے جانے لگی تو شوہر نے کہا، اس بار بھی اگر بیٹی لے کر آئی تو میں تجھے بازار میں بیچ دوں گا۔ شوہر کی بات سن کر بیوی ڈر گئی۔ قسمت کا لکھا تو دیکھو، اس بار بھی ایک خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ بچی کو دیکھ کر بیوی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کسی کو کچھ بتانے سے پہلے ہی اس نے نوزائیدہ بچی کو ایک ٹوکری میں ڈال کر ڈھکن لگا کر ندی میں بہا دیا۔ ٹوکری پانی کی لہروں کے ساتھ بہنے لگی۔ ایک مچھوارا ندی میں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس نے پانی میں بہتی ہوئی ٹوکری کو دیکھا تو وہ تیر کر ٹوکری کے پاس پہنچا اور ڈھکن کھولا۔ اندر سوئی ہوئی معصوم بچی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حیران اور پریشان ہو گیا۔ جب مچھوارا ٹوکری کو کنارے کی اور لے جا رہا تھا، تبھی آسمان سے ایک الو جھپٹا اور بچی کو لے کر اڑ گیا۔ مچھوارا دیکھتا رہ گیا۔ الو بچی کو پیپل کے پیڑ پر اپنے گھونسلے میں لے گئی۔ اس سندر چھوٹی بچی کو دیکھ کر الو کی ممتا جاگ اٹھی۔ اس نے بچی کو کھانا نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح پالنے کا فیصلہ کیا اور اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا۔ اور وہیں سامنے اسے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب الو اس میں گیا تو اس میں کوئی بھی نظر نہ آیا اور اسی جھونپڑی میں رہنے لگے۔ جب جہاں بھی الو کو اچھی کھانے کی چیز دیکھتی، وہ اسے جھپٹ کر لے آتا اور بچی کو کھلاتا۔ دھیرے دھیرے بچی بڑی ہونے لگی۔ جب بھی کسی کے گھر اچھے کپڑے دھلے ہوئے سوکھنے کو ڈالے جاتے، الو انہیں اٹھا لاتا اور بچی کو پہناتا۔ اسی طرح کنگھی، کاجل، آئینہ، تیل کا ڈبہ اور ضرورت کا سامان جہاں ملتا، الو اسے اٹھا کر لے آتا اور بچی کو دیتا۔ دھیرے دھیرے الو کی بیٹی بڑی ہو کر ایک خوبصورت جوان لڑکی بن گئی۔ اب الو کو فکر ہونے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی بیٹی سے کہا، تو اب بڑی ہو گئی ہے، میں تجھے چھوڑ کر روز دور چلی جاتی ہوں۔ مجھے چنتا ہوتی ہے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ مجھے ہر پل ڈر لگا رہتا ہے۔ اب سے اگر کوئی مصیبت آئے یا تجھے ڈر لگے تو یہ گیت گانا، اماں میری اماں، پیاری پیاری اماں، اور میں جھٹ سے تمہارے پاس اڑ کر آ جاؤں گی۔ ایک دن ایک سوداگر اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ گرمی سے راحت پانے کے لیے وہ جھونپڑی کے پاس ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ اس نے چاروں اور نظر گھمائی، اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا اور وہ اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، اتنی خوبصورت لڑکی میں نے کبھی پہلے نہیں دیکھی تھی، اور الو کی بیٹی نے بھی پہلے کبھی کسی انسان کو نہیں دیکھا تھا۔ سوداگر نے اس سے سوال کرنا شروع کیا، تم کون ہو؟ کوئی پری ہو یا رانی جو اتنی خوبصورت ہو؟ اور تم یہاں کس کے ساتھ رہتی ہو؟ اگر انسان ہو تو یہاں جنگل میں کیوں رہ رہی ہو؟ اس کی باتیں سن کر الو کی بیٹی ڈر گئی اور گیت گا کر اپنی ماں کو بلانے لگی۔ بیٹی کی آواز سنتے ہی الو فوراً وہاں پہنچی۔ اس نے بیٹی سے پوچھا، کیا ہوا؟ مجھے کیوں بلایا؟ بیٹی نے کچھ نہیں کہا، بس سامنے کھڑے آدمی کی اور اشارہ کر دیا۔ الو نے اس آدمی کو دیکھ کر اور سوچا کہ اگر میری بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے تو میری فکر دور ہو جائے گی۔ الو اڑ کر سوداگر کے پاس آئی اور اسے اپنی بیٹی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سوداگر نے کہا، میں ایک رئیس آدمی ہوں اور میری پہلے سے 3 بیویاں ہیں۔ اگر تمہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بڑے پیار سے رکھوں گا
और कभी कोई तकलीफ नहीं दूंगा। उल्लू ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के पास ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथ में सौंप दिया। बेटी ने माँ से बिछड़ने के गम में रोते हुए कहा, माँ, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें गीत गाकर बुलाऊंगी। सौदागर उल्लू की बेटी को अपने घर ले गया और उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से रहने लगा। लेकिन ये बात उसकी पहली बीवियों को पसंद नहीं आई। वे उल्लू की बेटी से जलने लगी और उसे तकलीफ देने लगी। एक दिन तीनों बीवियां उसके पास आई और सबके लिए चावल बनाने को कहा। उल्लू की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे खाना बनाना तो दूर, उसने कभी किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। हैरान परेशान होकर वो घर के पीछे लगे केले के पेड़ों के बीच जाकर रोने लगी और गीत गाकर अपनी माँ को बुलाने लगी। उल्लू तुरंत वहाँ आ पहुँची। उसने प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, क्यों बुलाया मुझे? बेटी ने कहा, माँ, वे तीनों मिलकर मुझसे सबके लिए चावल बनाने को कह रही हैं, लेकिन मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। अगर मैंने नहीं बनाया तो वे मेरे शोहर से मेरी शिकायत करेंगी और मुझे नुकसान पहुंचाएंगे। उल्लू माँ ने कहा, बेटी तुम मत डरना, मैं जैसा बताती हूँ वैसा ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर सब्जी को डाल देना। दोनों बर्तन पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी रख देना और फिर घर से बाहर जाकर बैठ जाना। देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेंगे। ऐसा कहकर उल्लू उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने अपनी तीनों सौतनों को खाना खाने के लिए बुलाया। तीनों ने अपनी थाली के नीचे एक छेद कर रखा था। जब वो खाना और सब्जियों का रस परोसती तो वो छेद से नीचे गिर जाता। वे बार बार कहती, खाना खत्म हो गया है और लाओ, लेकिन बर्तन से खाना खत्म नहीं हो रहा था। आखिरकार तीनों सौतने हार कर और शर्म से उठकर चली गई। एक दिन तीनों ने मिलकर उल्लू की बेटी से कहा कि गायों को रखने वाला घर गौशाला साफ करें। उसे साफ सफाई की आदत नहीं थी क्योंकि उसने ऐसा काम कभी नहीं किया था। वो गौशाला में जाकर गायों के बीच रोने लगी और अपनी उल्लू माँ को बुलाया। उल्लू माँ फौरन से वहाँ आ गई और प्यार से पूछा, बेटी क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? बेटी ने अपनी परेशानी बताई। उल्लू माँ बोली, तू झाड़ू की एक गाठी लेकर गौशाला के इस छोर से उस छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गौशाला साफ हो जाएगा। ये कहकर उल्लू माँ उड़ गई। बेटी ने माँ की बताई बात पर अमल किया और देखा कि गौशाला एकदम साफ सुथरा हो गया। उसका शौहर ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपनी चौथी बीवी से और भी ज्यादा प्यार करने लगा। इसी तरह दिन बीतते गए। हर साल की तरह इस बार भी घर में एक दावत होने वाली थी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए अच्छे कपड़े बना कर दो। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे अच्छे कपड़े बना सकता है। तीनों बीवियों का कपास को धोकर धुनकर सूत निकालकर कपड़े बुनने में लग गई। लेकिन उल्लू की बेटी को ये सब कुछ नहीं आता था। वो रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लेकर बैठी रही। तीनों बीवियां मन ही मन सोचने लगी, इस बार ये बुरी तरह फंसेगी। जब कपड़ा नहीं दे पाएगी तो सौदागर इसका क्या करेगा? वे इस बात पर खुश थी। उधर दावत का दिन करीब आ रहा था। उल्लू की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में जाकर अपनी माँ को बुलाने लगी। उल्लू माँ तुरंत आ गई और कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और उनमें थोड़ी थोड़ी कपास भरकर उनका मुंह बंद कर दे। दावत के दिन जब तेरा शौहर तुझसे कपड़ा मांगे तो उन्हें ये टुकड़े दे देना। ये कहकर उल्लू माँ उड़ गई। उल्लू की बेटी ने कपास को हाथ तक नहीं लगाया। ये देखकर तीनों बीवियों को बड़ा मजा आया। दावत के दिन सौदागर के पास तीनों बीवियां एक एक करके गई और अपने अपने बुने हुए हसीन कपड़े उसे दिए। बदले में उन्होंने उसका प्यार और दुआ पाई। अंत में उल्लू की बेटी ने 4 चुंगे सौदागर के हाथ में थमा दिए।
कपड़े के बदले में चुंगे देखकर तीनों बीवियां ठाके मारकर हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आया। उसने कहा, ये सब क्या है? तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने अपनी छोटी बीवी को डांटते हुए फटकार लगाई। उल्लू की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोल कर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगों का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। कपड़ों की बुनाई देखकर सौदागर तंग रह गया और अपनी छोटी बीवी पर और भी ज्यादा मोहब्बत लुटाने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला कि एक उल्लू आकर उसे सब कुछ सिखा जाता है। उन्होंने चुपके से वो गीत भी सीख लिया जिससे वो उल्लू माँ को बुलाती थी। एक दिन धोखे से उन्होंने उल्लू माँ को बुलाया और डंडों से पीट पीट कर उसे मार डाला। उल्लू की बेटी को इस बात की कोई खबर नहीं हुई। अब जब भी वो उल्लू माँ को बुलाती, वो नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसे समझ आ गया कि उसकी तीनों सौतन ने मिलकर उल्लू माँ को मार डाला है। बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उल्लू माँ कभी वापस नहीं आई। कुछ समय बाद सौदागर किसी काम से नाव लेकर निकला। जाते समय उसने बार बार अपनी तीनों बीवियों को हिदायत दी कि वे उल्लू की बेटी का ख्याल रखे। सौदागर के सामने वे अच्छी बनने का नाटक करती रही, पर सौदागर के जाने के बाद तीनों बीवियां उल्लू की बेटी को घर से निकालने की योजना बनाने लगी। उन्होंने मिलकर भोली भाली उल्लू की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथों बेच दिया। उसे बहलाकर और फुसलाकर मेहंदी और काजल खरीदने के बहाने आदमी की नाव में बैठा दिया। आदमी ने उसकी सुंदरता देखकर नाव में बिठाया और नदी किनारे अपने घर ले गया। वहां आदमी ने उल्लू की बेटी को सूखी मछलियों की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी उल्लू की दुखी बेटी अपनी उल्लू माँ को याद करते हुए गाने लगी। सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर लौट रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज पहचानी और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर सौदागर को बहुत दुख हुआ। उसने उसे अच्छी तरह नहलाया और कपड़े पहनाए। लकड़ी के बॉक्स में 2 छेद करके उसमें उल्लू की बेटी को रखकर घर ले आया। तीनों बीबियां शोहर के नाव में ढेर सारा सामान देखकर फूली नहीं समाई और सज धज कर बाहर आ गई। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी बीवी उल्लू की बेटी कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो अपनी माँ के पास गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ बुरा किया है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये अब पता चलेगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसमें आग के कोले डाले और तीनों बीवियों को उस पर चलने का आदेश दिया। उसने कहा, जो भी इस आग पर चलकर गड्ढे को पार करेगी वही सही साबित होगी। एक एक कर सौदागर की 2 बीवियां उस गड्ढे में जाकर गिरकर मर गई। तीसरी बीवी जो सच बोल रही थी वो आग से चलती हुई बक्से के पास पहुंची। जिस वक्त सौदागर की 2 बीवियां उल्लू की बेटी को बेच रहे थे, उस वक्त वो किचन में खाना बना रही थी और उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सौदागर ने लकड़ी के बॉक्स से उल्लू की बेटी को बाहर निकाला और उसे खुशी खुशी घर ले आया। यहाँ वो दोनों बीवियों के साथ खुशहाल जिंदगी बिताने लगा। मोहतरम नाजरीन, आज की वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। शुक्रिया।